Hello guys, Jai Hind. This is Army Olive, the person behind the curtain for last 8 months. I have started this page on 2nd February 2020, and with your support we are having our 12k family now. It's just because of you and your all support. So today's live session is about FCAT preparation strategy. So hello, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Wait, just give me a second. So today's session is all about FCAT preparation strategy. So you guys all know that बहुत कम दिन अब बाकी हैं, पढ़ने का वक्त नहीं बचा अब जो करना है वो आप लोगों को खुद की मेहनत पे करना है। जितना भी करना है आपके प्रिपरेशन बेस्ट हो चुकी है। अब आपको जो करना है, जितना करना है, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट एंड रिवीजन नोट्स काम आएंगे। ओके, एवरीवन सब देख सकते हैं मेरे को कि नहीं? फर्स्टली टेल मी दैट इज एवरीथिंग इज ओके। It's me, it's me, it's me. नहीं, मैं आर्मी में नहीं हूँ। I'm also preparing. Yes मैम, ज्वाइन करिए आप। Hello everyone. Just wait for a while. Ma'am is coming. I think here she is. Now. My name is Abhiman. Hello, ma'am. Jai Hind. Jai Hind, Jai Jai Hind. Hind, Is ma'am. that Abhiman? Yes, ma'am. This is Abhiman, the person behind the curtain from last 8 months. Yeah, I was not able to recognize you that you are Abhiman. So it's so good to meet you, Abhiman. तो मैम कैसे हैं आप? I'm good. I'm good. Thanks for asking. Hope you are doing well as well. Okay. So firstly, I want to introduce you to all my viewers. So, hi guys, this is Sagrika Singh ma'am. It's so surprising to know you are working as a manager in Accenture company, as well as you are managing your YouTube channel and helping aspirants in many ways. You have helped me for in many ways. So thanks for being helping us. And so I just want to start with congratulating you since you got recommended again for FCAT entry. So I think we should begin our session. Thank you so much, Abhiman, for your kind words.
I believe that, if I am able to help people, and especially the defense aspirants, then I am privileged. You don't get these privileges often. So I find myself quite lucky that I'm able to provide that platform. And thanks to you again for calling me on your page. Thanks for being with us in our live session. It's a privilege for us also to be a part of you in your journey also. So, मैम, as we know that FCAT के लिए अभी एग्जाम के लिए बहुत कम डेज बाकी हैं. Many aspirants Yeah. are like disturbance, they are distracted from their path. कुछ लोग ने प्रिपरेशन अच्छी कर ली है लेकिन वो नर्वस हो जाएंगे पेपर वाले दिन. कुछ लोग ने प्रिपरेशन आधी करी है, अब वो क्या कर रहे हैं. तो इन लोग का डाउट्स है कि एफकैट की 2020 के अब स्ट्रेटजी मैं क्या करूं. Abhiman, see, I'll tell you one small story. In ancient days, जब घोड़ों पे चढ़कर और तलवार से और उस सारी वेपन्स के साथ जब लड़ाइयाँ होती थी ना, तो लड़ाई के पहले किसी एक बंदे को भेजा जाता था जो एनिमी था ना उसके रेजिमेंट में, और वो डिस्गाइज होके जाता था. और उसका काम पता है क्या रहता था? सिर्फ ये रहता था कि वो ये पता करके आए कि एनिमी की स्ट्रेंथ क्या है. सो द फर्स्ट रूल ऑफ बैटल इज नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर एनिमी. और जब हम एफ कैट की बात करते हैं, सो इन एफ कैट योर एनिमी इज एक्चुअली योर सिलेबस, राइट? सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट प्लीज गेट अ गुड होल्ड ऑन योर सिलेबस. जब आपको ये पता रहेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का डिवीजन होगा, सो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा कुछ प्रिपरेशन के लिए रह जाएगा. बिकॉज यू नो दैट दिस मच आई नीड टू प्रिपेयर, this is the areas from where I can get more and more marks. और जब आप इस बेसिस पे अपनी तैयारी करते हैं, then no one can stop you from achieving at least 190 plus. Yes ma'am. In my case, मेरा जो कहना है कि इन बैटलफील्ड आपकी विनिंग और लूजिंग नहीं मैटर करती, आपकी प्लानिंग, डेडिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैटर्स करता है. Yes, it is. In fact, let me tell you, अगर हम पूरे पेपर को समझना चाहें, राइट, तो गिन के 100 सवाल है, राइट? यू विल अग्री कि 100 सवाल है, 3 मार्क्स का एक सवाल है, -1 है फॉर एवरी नेगेटिव मार्किंग दैट यू विल मार्क देयर. सो उस 100 में से पूरे 100 आपको नहीं करने हैं. यू आर नॉट सपोज टू गेट ऑल द 100 क्वेश्चंस राइट. रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि आप उनकी एरियाज में जहां पे कि आपको लगता है कि यू आर राइट, आप उसी को अप्रोच करो. और डिवीजन भी कितना इजी है, इंग्लिश, मैथ्स, एंड देन देयर इज लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. सो इन लॉजिकल, जहां पे लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है, इट्स समथिंग दैट यू कैन अचीव थ्रू प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस आप कर सको, और प्रैक्टिस के लिए सोर्सेज की कोई कमी नहीं है. लेट मी टेल यू, कोई भी कमी सोर्सेज की नहीं है. अगर आप एक बार टाइप करो दैट यू नीड क्वेश्चंस ऑन एफकैट, यू विल गेट सो मेनी पेजेस हु आर प्रोवाइडिंग यू दैट काइंड ऑफ कंटेंट. In fact, हमने भी अभी very recently we have launched our app, SSB Nation Needs You. Is available there on Play Store as well. So we are providing that kind of material over there. अगर आप इंग्लिश की बात करो, तो उसके लिए सिर्फ एक बुक है which I would recommend to each and every one of you, which is SP Bakshi. I hope you have heard about SP Bakshi's book. Even I follow that book also. That's a concise book for preparation of English. You have said very right word, which is concise. बहुत ज्यादा sources के पीछे अगर आप भागोगे, see, syllabus is like sand. If you will try to hold the whole sand, then it will come out through the holes, right? So the thing is that go for concise preparation. ठीक है? तो जब आपने SP बख्शी पढ़ ली, तो आपको synonyms, antonyms, comprehension, word का जो puzzle आता है, या sentence completion, anything you can do it. और जब मैथ्स की बात आती है, आई डोंट नो, मैंने ये बुक बहुत ज्यादा एस्पिरेंट से तो नहीं सुनी, लेकिन एक एम टायरा की बुक है, मैजिकल मैथ्स और क्विकर मैथ्स करके. आई गेस इट इज क्विकर मैथ्स. ओके, एम टायरा. यू हैव हर्ड अबाउट दिस बुक? I have heard about. Yes. So you haven't purchased it. You have only heard about that book, right? I haven't gone through that book, but I had heard about that book. So Abhiman, I would suggest you that please go and buy that book. उस बुक में हर एक चीज का
अगर हम सिलेबस को देखें, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, एंड देन देयर आर अदर डिस्टेंस एंड टाइम एंड परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक नहीं है, इतने सारे टॉपिक हैं जो उस बुक में बहुत ही बहुत ही फास्ट मेथड उसके दे रखे हैं। अगर आपको कोई स्टेप, कोई भी क्वेश्चन करने में अगर 10 स्टेप्स लगेंगे, तो उसमें वो शायद आपको 2 या 3 स्टेप्स में ही बताएंगे। तो उससे आपका एक तो टाइम बचेगा, जब टाइम बचेगा तो उसी टाइम को आप किसी और क्वेश्चन में दे सकते हो, राइट? तो मैथ्स के लिए एम डायरा, इंग्लिश के लिए बख्शी, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस, और जो चौथा पिलर है विच इज जीके। सो जीके के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज नॉट GK लाइक is very समथिंग यू विल, या प्लीज GK गो is अहेड। very vast. GK is very जीके, vast. yeah, actually GK is like ocean for you, right? If you're Yes. not carrying the right skills that how to swim, then you may get into the water. So the thing is that you have to again plan what are your good areas, what are your strengths. Please polish your strengths and try to attempt more and more questions from the areas in which you are good at. ऐसा नहीं है कि किसी फ्रेंड ने कहा कि मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो आप हिस्ट्री पढ़ने लगो। हो सकता है कि तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो, या किसी ने कहा कि यार मुझे ना सिविक्स में बहुत मजा आती है, तो तुम भी फिर नेक्स्ट डे लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने लगे। लक्ष्मीकांत इज वेरी गुड बुक, you should prefer it, but again Yes, you ma'am. need to see that which are my key areas. We have to work on both on 4 pillars, as you had said. Uh-huh. So Yes. uh, this is the GK is very vast for us. Just like I'm very good in polity because I'm Okay. pursuing law. I'm very Okay, good in polity. interesting. Polish Okay. I just polish my areas to get these things into my, and I just attempt only polity question and current affairs question in GK, and it Okay. will serious it is having a number of question approximately 30 to 40 question, and through Exactly. that I will clear I will clear my cutoff. And for English मैं जितना प्रैक्टिस करो आप, एसपी बख्शी हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, तो इंग्लिश में मेरा ये स्ट्रेटजी है। तो सेम गोज विद एफकैट आल्सो मैम। See, एफ कैट के लिए जैसे मैं अगर यहाँ प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, सो आई विल टेल द स्ट्रेटेजी विच आई हैव अडॉप्टेड, राइट? तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल, ढेर सारी बुक्स कवर नहीं करनी है, बिकॉज यू कांट डू इट, राइट? इफ यू आर अ सिंगल पर्सन, मुझे तुम बताओ क्या एक दिन में उतनी सारी किताबें इंग्लिश की कोई पढ़ सकता है? Practically it's not possible at all. So you have to keep one source, and revision is the key. See, where we lack, we always study something for one time and then we expect कि वो हमें हमेशा याद रहे या एग्जाम तक याद रहे. This is not possible. You have to keep revising the stuff. कोई भी एक चीज जो आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में ज्यादा 2 दिन टिकेगी if you are not revising. But with revision, you may keep that thing for 10 months straight in your head. So the key is that you keep on revising. एक बुक पढ़ोगे तो उसका रिवीजन भी आसान होगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो कितनों का रिवीजन कर पाओगे आप, राइट? और एसपी बख्शी में कॉम्प्रिहेंशन हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन हो, पैराजम्बल जो वर्ड्स हैं उनको आगे पीछे करना हो, सेंटेंसेस ऊपर नीचे करने हो, you name it and you will find it there. So this is important that please go for one book. Maths के लिए, as I have told you, M Daira. And for GK, yes, it's your hard work. You have to do it. There is no shortcut for GK. Short tricks or anything. It's your hard work will give you the success. So, ma'am, second question is how to score high in FCAT? Okay, that's interesting question. See, Abhiman, the thing is that when you say high, right? तो 2 आपके अप्रोचेस होने चाहिए, एक ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना और कम से कम नेगेटिव मार्किंग करना। सी जितने भी एग्जाम्स इंडिया में है उसमें आप एक चीज देखोगे कि वो ये तो चेक करते ही हैं कि आपको कितना आता है, वो ये भी चेक करते हैं कि आप कितना यूजुअल रिस्क ले रहे हो। यूजुअल रिस्क का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, उसमें यू आर 50-50 श्योर दैट दिस इज द राइट आंसर, और आप अटेम्प्ट करो कि नहीं करो ये आप सोच रहे हो, राइट?
तो वहां पे जो लोग दिमाग से खेलते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो एलिमिनेट करते हैं उन ऑप्शंस को जो कि ऑप्शन सही नहीं होंगे, और फिर जो दो yes, ऑप्शंस हैं उसमें से वो टिक करते हैं, वो भी गेस वर्क करते हैं, और ज्यादातर केसेस में 75% केसेस में वो सही भी होते हैं। कुछ आते हैं महारथी जो कैजुअल रिस्क लेते हैं, वो क्या करते हैं कि जो समझ में आता है, आई डोंट नो, आई हैव हर्ड कि वो कोई मंत्र वंतर पढ़ के जो भी आएगा ऑप्शन उसमें वो टिक करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे वर्क लाइक दिस, एंड देयर इज नो पॉइंट डूइंग दिस, यू नो, देयर इज नो पॉइंट। क्योंकि जंतर मंतर से अगर एग्जाम देना होता तो 300 मार्क्स आते लोगों के, why would anyone settle for 150 or 190 or 200 if you know only through jantar mantar you can achieve 300? It's totally bullshit. It's wastage of time and your effort as well. yes, तो ma'am. मुझे लगता है It's कि a waste. स्कोर करने, हाँ जी, स्कोर करने It's से a भी wasted ज्यादा, of या वेस्टेज ऑफ वर्ड, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू। your 1 year preparation. Exactly. So this happens, you know, there was this guy who was telling me कि मैं पता नहीं किसकी पूजा करके गया था and again the exam didn't go well. I was like, this is very wrong mentality. Don't do this. You know, see, have faith on yourself, have faith on God, but even God will also ask you that what is your preparation, and when you will have that preparation strategy right at place, then only the God will also help you. So first Definitely, thing I first is, agree. yeah, so the thing is that do not go for अंधाधुन जो मार्किंग होती है कि इस पे ए किया है, बी बहुत देर से नहीं किया है तो लाओ बी पे कर दें, सी भी नहीं किया है तो कर दें। सो डोंट डू दिस, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। स्कोर करने से भी ज्यादा की फोकस की मैं नेगेटिव मार्किंग अपनी बचाऊं। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 200 प्लस सही आंसर्स के लिए स्कोर किया होता है, but just due to their negative marking they settle at 191, 192, or for that matter even 180s as well. So more than scoring, please keep a check. Do not mark the questions for which you are not sure. They will lead to negative marking. Write it down, they will lead. अब आता है कि हमने तो बात कर ली कि हमें यू नो गेस वर्क नहीं करना है। अब बात आती है कि हम कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लें। यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लें। नंबर वन, जब भी आप मार्क करो, सी उस एग्जाम में भी इतने प्रोविजंस हैं कि आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, राइट? तो जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि आई माइट नो द आंसर, तो उसको आप मार्क एज रिव्यू कर दो। और जब आपके सारे श्योर आंसर्स हो जाएं, क्योंकि रीजनिंग में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आप श्योर होते हो, मैथ्स में कैलकुलेशन बेस्ड होता है तो आपको पता है कि ये आंसर आया है देन दिस इज द राइट आंसर, उसके लिए आप श्योर होते हो। इंग्लिश में भी मोर देन 50% क्वेश्चन के लिए आप श्योर होते हो। तो जब आपका, और जीके में तो भाई इट्स योर प्रिपरेशन, ऑन दैट नो वन कैन कमेंट। तो जब आप अपने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेते हो, उसके बाद आप पहुंचो उस पे जिसको आपने मार्क एज रिव्यू किया है। लेकिन कुछ लोग इतने विरले होते हैं कि वो मार्क एज रिव्यू करते ही नहीं है, वो अलग ही वो एलियंस होते हैं, वो मार्क एज रिव्यू करते ही नहीं है, वो फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फिर से जो है वो रिव्यू लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। यू आर टिपिकली वेस्टिंग योर टाइम। 2 घंटे ही है ना, 3 घंटे का पेपर नहीं है। यू हैव टू सेटल डाउन इन 2 hours ओनली। सो जो मार्क एज रिव्यू आपने किया है, हमेशा याद रखो, जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 2 एकदम गलत होते हैं, वो नियर अबाउट भी नहीं होते हैं, उनको तुरंत एलिमिनेट कर दो। फिर आप बचते हो 2 से, 2 आपके पास और ऑप्शन बचेंगे, उसमें थोड़ा सोचो कि क्या नियर अबाउट हो सकता है। जैसे इंग्लिश में मैं ये बहुत करती हूँ, राइट? जैसे आप ना कभी जब आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं ना, जब एप्स, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल कंटेंट जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, तो आपको ना वर्ड्स का टोन समझ में आता है। दिस इज Yes, नेगेटिव ma'am. टोन, दिस इज पॉजिटिव टोन। On the basis of that practice, see again practice is required, so on the basis of that practice you can go for a calculated risk, okay? Yes. And then if Mataji and whatever you are preaching they are good on you, then maybe you know everything will go. So what I say is ki go for calculated risk. Do not mark unnecessarily the answers, and please do revision before you appear for the exam. Okay, ma'am. So many of them are saying that alpha, beta and gamma. तो मैं बताना चाहूंगा उन लोग को कि जो अल्फा बीटा गामा है वो ऑफलाइन पेपर्स के लिए है, और जो एफकैट का वो ऑनलाइन पेपर होता है। तो ऑनलाइन पेपर में आप मार्क और रिव्यू छोड़ सकते हो अकॉर्डिंग टू मैम,
and after completing your paper, just go for the calculated risk and adopt the elimination method, so that from that you can score high, and as well as आपको negative marking कम मिलेगी. Yes. Right, ma'am? Negative keep check on negative marking. और see, Yes. आज की डेट में ना no one is going for hard work. Everyone is going for smart Yes. work. So please go for filtered syllabus. सब कुछ नहीं पढ़ना है. As a person, you can't study everything, right? मैं क्या करती थी कि मैं बना लेती थी अपना पहले ही कि मुझे आज ये चीजें पढ़नी है. I have to, you know, see, I was in job, so I had to make balance on 2 different platforms. Like कहीं तो मैं cloud engineer हूँ, where I'm dealing with servers, I'm dealing with the file projects and different things. And then it's defense forces, wherein you have to deal with GK, maths and different things. तो मेरे लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी टाइम का वेस्टेज, राइट? मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना टाइम वेस्ट करते हो उतना आप अपने चांस को नलिफाई करते हो. तो मैं बहुत प्रिसाइज रहती थी that you know I have to do this thing, then I'll come to this topic, then I'll come to this topic. So things were very clear in my mind. कभी भी ये नहीं कि आज मन है तो सारे सिनोनिम्स याद कर लेंगे, क्या जरूरत है? सब आप नहीं याद कर सकते हो अगेन. So I would say go for smart work, don't go for hard work. Hard work is good, but smart work is better. Just filter the things you want to do in a preparation. Yes. So you are asking how do I used to do it? Sorry, ma'am. Pardon, please. थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का लैग है. Your questions are coming to me a bit late. हाँ मैम, थोड़ा सा नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है. बाकी नेटवर्क पूरा है. ओके मैम. तो मैम थर्ड जो क्वेश्चन है मेरा कि मैम सब बढ़िया जाता है, अपन लोगों का प्रिपरेशन अच्छी गई, हम लोग का पेपर अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया. अब आया हम लोग का सबसे डिफिकल्ट टास्क. दैट्स द सेकंड स्टेज. आई मीन टू से दैट्स द SSB, द स्क्रीनिंग स्टेज. वहां पे 70 to 90% बच्चा आपका थम से गिर जाता है, आपका आधा हो जाता बिल्कुल. तो वहां पे मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी एयरफोर्स X5 का दे चुका हूँ स्क्रीनिंग. तो वहां पे मेरा दिमाग काम बंद कर देता है. तो यहाँ पे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनका भी दिमाग बंद कर देता है, ऑफ हो जाता है वहां पे, क्योंकि इतना प्रेशर होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड आपका ट्रैवलिंग, आपको LQ शो करना है, दिखाना है उन लोगों को. तो आई जस्ट वांट टू नो कि मैम क्या मतलब आपने क्या अडॉप्ट किया, आपने क्या करा. जस्ट टेल योर थिंग्स विद अस. ओके. सो अभिमान, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वहां पे जब आप SSB की स्क्रीनिंग के लिए जाते हो ना, आपको कोई नहीं जान रहा होता. यू आर नो वन. ना तो आपके साथ में कोई टीम अलॉटेड होती है कि टीम वाले आपको जानेंगे. एसेसर्स को तो आप भूल ही जाइए कि वो आपका चेहरा भी पहचानते हो. तो आपके सामने सबसे बड़ा टास्क ये रहता है टू मेक योर प्रेजेंस फील, राइट? अब प्रेजेंस फील का ये मतलब नहीं है दैट यू नो यू आर डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ ब्लू मून. नो, आई एम सेइंग व्हाटएवर द प्रोसेस इज, like first you have to appear for your OIR. Give your OIR your 100%. I have seen students who think that OIR is not important. Who have said that to you, that OIR is not important? It is one of the most important tests for screening. The more you will score in OIR, the more probability you make for yourself in everything, be it SSB, be it screening process. So please give your 100% to OIR. और वो बहुत ही easy है. जो इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है उसमें मुझे लगता है कि वो बहुत ही मतलब प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, एंड प्रैक्टिस इज एवरीवेयर अवेलेबल. ऐसा तो नहीं है ना कि क्वेश्चन बहुत चेंज हो रहे हैं. अगर आप वहां पे नोटिस करोगे तो जो बुकलेट आती है वो बुकलेट भी काफी रिवाइज रहती है. यू नो मेनी बैचेस वुड हैव गॉन थ्रू द सेम बुकलेट. सो वन थिंग यू आर श्योर दैट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग, दे आर सेम. So please go by, you know, doing good practice about those questions. Number 1. Number 2, जो सबसे important है, which is PPDT, right? PPDT में सबसे पहले तो आप स्टोरी को ध्यान से देखो. कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत हड़बड़ी उनको रहती है कि मैं जल्दी से पिक्चर देखूं, जल्दी से लिख दूं और मेरी स्टोरी जो है उस टाइम में खत्म हो जाए. अंडरस्टैंड द फैक्ट कि लिखी हुई स्टोरी से ज्यादा जो आप स्टोरी नरेट करोगे
उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? आपने लिखा जो है उसमें हो सकता है आप ऊपर नीचे चेंजेस कर लो, बट जो आप नरेट करोगे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ऑब्जर्व करना पिक्चर को बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई भी एलिमेंट मिस किया ना, तो हो सकता है कि ग्रुप से टोटली डिफरेंट आपकी स्टोरी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप से अलग स्टोरी लिख नहीं सकते, ऑब्वियसली यू कैन राइट इट डाउन। आई हैव रिटन मेनी स्टोरीज व्हिच वाज डिफरेंट देन माय ग्रुप, लेकिन सबसे पहले जो आपको टाइम दिया गया है ऑब्जर्व करने का, यूटिलाइज ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द एज, व्हाट इज द मूड, राइट इट डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सी एनीथिंग यू मिस, जो भी आप चीजें मिस करते हो ना, इट गेट्स नोटेड समवेयर, क्योंकि डिफेंस का एक ही रूल है, फॉलो द रूल्स, दैट्स इट। वहां पे सिर्फ एक ही रूल है, फॉलो द रूल्स। तो जब आप रूल ही फॉलो नहीं करोगे, जो वहां पे लिखा हुआ है कि आपको एज परसीव करनी है, मूड परसीव करना है, यू हैव टू राइट इट डाउन, और हड़बड़ाहट में आपने वही चीज नहीं लिखी, तो आपने एक बेसिक रूल तो मिस कर दिया। तो कीप योर माइंड काम, पेशेंस रखो अपने अंदर, ऑब्जर्व करो, स्टोरी लिखो, एंड व्हेन यू आर इन द ग्रुप, नरेट अ ऑसम, इट शुड बी द बेस्ट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। ऐसा सोचो आप कि दिस इज द लास्ट टाइम आई एम नरेटिंग अ स्टोरी। जब आप किसी भी चीज के साथ लास्ट जोड़ देते हो ना, तो आप उसको अपना हार्ट एंड सोल सब दे देते हैं। तो प्लीज कोशिश करो कि आप अपनी स्टोरी जो है वो बेस्ट तरीके से नरेट करो, ग्रुप में अच्छे से पार्टिसिपेट करो, और अगर अगर आपको ये प्रिविलेज मिली दैट पीपल विल चूज यू टू नरेट द ग्रुप स्टोरी, तो उसको भी अच्छे से नरेट करो। लेकिन कभी भी खुद से वॉलंटियर नहीं करो कि मैं ग्रुप स्टोरी नरेट करूंगा, नहीं, नो। इफ Yeah. ग्रुप विल टेल यू, then only you should narrate. Yes, this is very important thing which many candidates they fail to understand, but it is important. You should never say that I will narrate the story. The group will say that we want so and so chess number to narrate the story, then it is fine. Then it means that you have something in you, you are a good narrator, or you are a good orator. But ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कर देता हूँ, मैं ग्रुप स्टोरी, no, it doesn't looks good at all. Yes, ma'am. That doesn't look good. Yeah. So, ma'am, my next question is about how to handle GK questions. It's first of all, it is a vast syllabus. Second, जीके क्वेश्चन मतलब इतना घुमा देते हैं, 360 डिग्री पूरा घुमा देते हैं आपको, कि आपको सोचने में मजबूर कर दे कि ऑप्शन बी है, सी है कि डी है, सारे ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है। तो एलिमिनेशन तो वक्त यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब हाउ डू यू हैंडल दिस क्वेश्चंस? मतलब इतने टफ क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, देयर इज अ वास्ट सिलेबस। सो हाउ डू यू हैंडल दीज क्वेश्चंस? Okay, that's a good question, Abhiman. I would say, see, जो डिफेंस फोर्सेस का बेस्ट पार्ट होता है ना, वो ये होता है कि इनके क्वेश्चंस में ना रिपीटिशन होता है। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको पढ़ के जाओगे या अगर आप थोड़ा सा रेफरेंस लोगे, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस ना रिपीट हो रहे हैं। और बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाओ, 10 साल के जो सवाल है उनको उठाओ और उनको ही प्रैक्टिस करो, उन्हें देखो कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। then you will observe कि कुछ repetition है, there is a trend which is being followed। और ट्रेंड का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप एफ कैट के जीके क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसमें स्टैटिक क्वेश्चंस जो है स्टैटिक जीके के भी रहते हैं, राइट? और उसमें स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि मुगल सल्तनत के भी कई सारे सवाल होंगे, किसी ओलंपिक से रिलेटेड कोई सवाल होगा, वर्ल्ड करंट अफेयर से भी कोई सवाल वो ले लेंगे। सो लाइक इट्स वेरी रैंडम। लेकिन जब आप सीडीएस का एनालिसिस करोगे तो सीडीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत अच्छा ट्रेंड होता है। यहीं पे आपको कैच करना है कि सीडीएस का ट्रेंड क्या है पिछले 5 साल का और 10 साल का। और एफ कैट के लिए तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो उसकी वास्टनेस है ना, जैसे एफ कैट का लोग बोलते हैं कि जीके बहुत वास्ट है, समझ ही नहीं आता है कहाँ से क्या क्वेश्चन दे देंगे, तो उसका एक ही तरीका है, आप हर चीज की लिस्ट बना लो। जैसे अगर this is my way, I don't know whether it's going to be applicable to somebody else or not, मैं क्या करती थी कि मैं लिस्ट बना लेती थी कि this is specific to the geography, this is specific to the history, this is specific to the games and sports, this is specific to the current things which are going। तो जब आपका क्लासिफिकेशन होता है ना, जैसे आप वेन डायग्राम समझो, छोटे छोटे कई वेन डायग्राम्स एक बड़ा वेन डायग्राम बनाते हैं,
राइट? उस बड़े वेन डायग्राम का नाम है जीके, और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं दे आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट? अब आपको ये देखना है, आपने ये तो क्लासिफिकेशन तो कर लिया, वो सभी करते हैं, राइट? कुछ लोग होते हैं जो उन सारे वेन डायग्राम्स को होल्ड करना चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री भी बहुत अच्छा कर लूं, ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा कर लूं, सिविक्स तो सब कुछ कर लूं। वो नहीं होगा। आप पहले कुछ चीजें जो आपको लगे कि ये मेरे लिए इजी है, उनको कवर कर लो, उन्हें साइड डालो। ये मैं बात बता रही हूँ जब 40 डेज या 50 डेज आपके पास बचे हुए हो, ठीक है? अब इन 40-50 डेज में जो नेक्स्ट टास्क आता है वो आता है जब आपके पास अराउंड 20 डेज बचे हो। 20 डेज में आप उन चीजों को उठाओ जो करेंटली चल रही होंगी। करेंटली चल रही होंगी मतलब कोई रिसेंट इवेंट हुआ हो, कोई रिसेंट कॉन्क्लेव हुआ हो, कोई रिसेंट जो है एक्सरसाइज चली हो। मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो पक्का से, मतलब हमने अपने ऐप में भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस का अलग से कॉर्नर बना रखा है। चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो बायोलेटरल हो, चाहे वो मिक्स्ड हो, जैसे कि मान लो कि चाइना, रशिया, इंडिया तीन मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये जितने भी रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उन सबको आप अच्छे से थरोली याद कर लो। और जो 20 डेज का स्लॉट बचता है उसमें हर दिन रिवीजन, हर दिन, मतलब एवरी डे, मतलब यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज प्लीज रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव डन टिल नाउ। ओके? तो जो 20 डेज में आप रिवीजन करते हो ना, तो वो मुझे लगता है कि सिर्फ एफ कैट ही नहीं, एफ कैट के बाद जब CDS2 भी आप दोगे तो उस वक्त तक वो सारा का सारा कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा। सो मेक स्ट्रैटेजी डे वाइज। 40 days complete the things in which you are good at, which you find easy for you. 20 days keep on revising, रिवाइज करते 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 ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन मुझे लगता है कि आप इजीली इजीली जो है अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने उन जीके के पूरे जो फैक्ट्स हैं उनको अपने दिमाग में अच्छे से रखा। So मैम आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि जो मैं करता हूँ सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए, जब 40-50 मतलब सबकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबको मैं बताना चाहूंगा सबकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग होती है। आप अपनी फॉलो करो, नाम का अलग है, मेरा अलग है। आई जस्ट वांट टू ऐड माय स्ट्रेटेजी आल्सो कि व्हाट आई डू प्लीज गो। कि मेरे पास 40 डेज बाकी है, मैं उनको रीडिंग नहीं कर सकता हूँ बुक्स की थॉरोली एंड जस्ट मार्क द ऑल एमसीक्यूज। तो व्हाट आई डू, जस्ट यूट्यूब खोला आपने, उसमें अन अकेडमी के क्रैश कोर्स पड़े होते हैं सिविल सर्विसेज के, तो उसके क्रैश कोर्स एंशिएंट हिस्ट्री जो मेरे को मतलब इजी लगता है अडॉप्ट करने में, जो भी सब्जेक्ट लाइक एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद मेरा करंट अफेयर्स, बस मैं इतने सब्जेक्ट करता हूँ। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता हूँ, जिससे कि मेरे को ज्यादा पैनिक नहीं होना है करने में। उसके बाद जब मैंने क्रैश कोर्स कर लिया, मैं 3 घंटे का 4 घंटे का लेक्चर होता है, उसके बाद आप अपना बुक उठाओ कोई भी एमसीक्यू का या कोई भी ऑनलाइन ले लो, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह, तो उसमें आप एमसीक्यू टिक करो, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज मेरे को इजी पड़ता है, तो टॉपिक वाइज मैंने करा, तो आपका भी हो गया और आपका एमसीक्यू भी प्रिपेयर हो गया, और साथ में आपके साथ विजुअलाइजेशन मेमोरी भी फीड हो गई, क्योंकि आप एक लेक्चर देख रहे हो 3 से 4 घंटे का, आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन मेमोरी सेव हो गई। सो दिस इज द थिंग व्हाट आई डू। ठीक है? It's completely the best strategy because see every strategy is on the basis of individual's comfort, right? जैसे कुछ लोगों को 40 डेज में नया कुछ पढ़ने में घबराहट होती है कि मैं भूल जाऊंगा, और कुछ लोग ऑपोजिट होते हैं, उनके ऊपर जितना प्रेशर होता है वो उतना ज्यादा अच्छा करते हैं। So it's completely individual's approach. You know, you can go for anything, I can go for anything else. Yes, ma'am. Everyone has its own strategy. Yeah. Follow your own. So, ma'am, I will follow with my next question. Question about the strength and weakness. How to judge your strength and weakness? यहाँ पे बहुत लोग मात खाते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, किस चीज का मैं कैपेबल हूँ। तो आई जस्ट वांट टू नो दिस कि कैसे हम लोग फाइंड करें अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पार्ट। Abhiman, this is very important question. Why? Because this question will be asked in almost every interview which you will face. I'm not talking about only defense interviews. I'm talking about interviews for your job, for any MTech course, for any courses in foreign universities. They will ask you that what are your strengths and weaknesses.
जैसे अगर आपको इतना नहीं क्लियर है दैट व्हाट आर माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो आई वुड रिकमेंड दैट गो एंड आस्क योर पेरेंट्स, बिकॉज मे बी व्हाट यू आर नॉट एबल टू सी दे विल सी इट। लेकिन मुझे ये चीज बहुत ही कभी कभार ऐसी लगती है कि इट कैन नॉट हैपन दैट यू डोंट नो अबाउट योर ओन सेल्फ, राइट? जैसे कि बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको फेलियर से डर नहीं लगता, या उन्हें हारने से डर नहीं लगता, या उन्हें अगर किसी तरीके का उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि किसी और के लिए थोड़ा फ्राइटनिंग है बट उनके लिए नहीं होता, सो दे आर करेजियस पीपल। कुछ लोग होते हैं जिनको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, राइट? सो दे डू गुड इन जीके और एनी अदर पार्ट। कुछ लोग होते हैं जो कि उनको कुछ भी कह दो उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता है, but just in case you are not able to figure out that what it is exactly, then I believe that your parents are the best source to tell you that what are your strength or weakness. लेकिन ये Yes, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा वो आपसे ये सवाल जरूर करेगा। और मैंने ये चीज नोटिस की है, जैसे मेरे चैनल के थ्रू भी जो सबसे ज्यादा सवाल मुझे ये पूछा जाता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ तो हैंडल कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए, कोई बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है तो बहुत खुश होकर बताएगा, आई एम अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर, आई डू वेरी गुड इन माई टीम एंड एवरीथिंग। लेकिन जब बात वीकनेस की आती है, सो देयर पीपल लूज देयर काम। उन्हें लगता है कि वीकनेस का क्वेश्चन मैं कैसे हैंडल करूं। जब आप अपने स्ट्रेंथ पे प्राइड कर रहे हो तो अपने वीकनेस को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? और वीकनेस हर्डल तब बनती है जब आप जब अपने आप उसको, वीकनेस को सुधारने के लिए कुछ स्टेप नहीं ले रहे यस मैम, यस मैम, आप उसको जब हो। यस, एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप उसको हटाने की यस, कोशिश नहीं करते हो अपने, यस, देन दैट ऑब्स्टिकल फॉर यू। that is a wrong approach, right? You have to accept your weakness and you have to work in order to overcome it. And this is what the interviewing officer will test in you, that how committed are you to overshadow your weakness. जब आप committed ही नहीं हो तो फिर अपने उस weakness को लेकर बहाने बनाओगे। Like many people say that I am a very short tempered person, but when the next statement that they say is I do meditation to cure it, so it means they are committed to their, upliftment. So this is what is required. जस्ट लाइक मी, आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर, स्टेट लेवल प्लेयर, Okay. एंड मेरे को स्ट्रेंथ तो अच्छी है। मैं, अगर मेरे को एग्रेशन आ गया तो बहुत अच्छा खेलूंगा। अगर मेरे को कोई टीज कर गया या मेरे को कोई इंजरी दे गया तो मैं उस सामने वाले को इतनी इंजरी दे देता हूँ कि शायद वो नेक्स्ट टाइम खेलने के लिए, तो मेरी यहाँ पे Right. वीकनेस है। ये मेरी वीकनेस है नहीं, नहीं, कि मैं सामने वालों को this is not, मारता हूँ। नहीं, नहीं। माय हो वीकनेस। सकता है अभी बात, उसने जो इंजरी दी वो धोखे से दी हो, जानबूझ के ना दी हो, तो ये तो गलत यस मैम, अप्रोच हो जाएगा, तुम्हारे हाथों किसी और का नुकसान हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। वही तो मैम, उसके उसके लिए मैंने काफी करी हुई है। जस्ट लाइक माय पार्टनर हैड हेल्प मी इन एवरीथिंग। अभी मैं थोड़े दिन पहले आपसे शेयर कर रहा था कि आई नॉट एबल टू मैनेज माय टाइम, तो कुछ उसने करा हेल्प, कुछ फैमिली मेंबर्स ने हेल्प करा, कुछ मैंने मेडिटेशन से हेल्प करा, कुछ मैंने चैंटिंग से करा, अपने स्पिरिचुअलिटी बढ़ाई गॉड की तरफ, तो इट हेल्प्स। सब लोग कहते हैं कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ अपने पास से, मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं उन लोग को बस यही कहना चाहूंगा कि पढ़ने बैठो, आप पढ़ नहीं पाते, जस्ट जो फोन होता है ना वो सबसे बड़ा एनिमी है। या तो आपको वो बना देगा या तो आपको बिगाड़ देगा वो पूरा आपके करियर को। सो मैं जो प्रिफर करता हूँ वो, मैं क्या करता हूँ, लेक्चर डाउनलोड करा, एयरप्लेन मोड में लगाया, 3 घंटे एक जगह पे बैठ जाओ, उठना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, उठना नहीं है। तो मैं ये स्ट्रैटेजी, कहीं भी उठना नहीं है, प्लेन मोड में लगा दो जिससे किसी का कॉल नहीं आए, नेट ऑन नहीं रहेगा आपका तो जिससे किसी का टेक्स्ट नहीं आए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। क्योंकि बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन मेनी एस्पिरेंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। 5 मिनट के लिए इंस्टा खोला और वो 5 मिनट का 50 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाते, पता नहीं चलता है किसी को भी। ये मेरे केस में भी हुआ है, शॉर्ट टेम्पर्ड था, एरोगेंट था, बट थिंग्स आर चेंजिंग। बट ये तभी चेंज होगी जब आप अडॉप्ट करोगे अपने अंदर चीजों को कि मेरे को चेंज होना है, मेरी ये वीकनेस है और मेरे ये ड्रीम्स है, और ड्रीम्स के लिए मेरे को
अपनी वीकनेस हटानी पड़ेगी और अपने स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और वीकनेस को कैसे अपनी स्ट्रेंथ में ला सकते हो। तो ये सब आपको लाना खुद पड़ेगा। दिस इज द वॉइस कम फ्रॉम योर इनर सोल। आपको कोई हेल्प नहीं करने आएगा, आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको चलना खुद पड़ेगा उस बात पे। That's true. That's true. That's very true. तो मैम अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना जो चाहूंगा, हाउ टू डील विथ रिजेक्शन एंड फेलियर्स। मतलब रिजेक्शन एंड फेलियर्स की वजह से मेनी एस्पिरेंट गेट डिस्टर्ब। अभी भी मेरे पास कल कहीं बात बता रहा हूँ मैं, एनडीए का एक एस्पिरेंट था। तो एनडीए का एस्पिरेंट ने कहा भाई मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने जी तोड़ मेहनत करी, 2 साल मैंने करी प्रिपरेशन, और मेरा नहीं लगता कि मेरा इस बार क्लियर हो पाएगा, और आई एम शैटर्ड और मेरे को कोई पाथ नहीं दिख रहा है। तो उनको मैं बस थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद आपका रिव्यू चाहूँगा कि उनको तो मैंने जो गाइड किया है जस्ट कि अभी आप 12th में हो, अभी आपका दिस इंडिया इज नॉट द ओनली वे टू गेट इंटर्न इनटू द आर्म फोर्सेस। आपके पास अभी एयरफोर्स एकेडमी है सोल्जर रैंक के लिए, सोल्जर रैंक फॉर आर्मी है, सोल्जर रैंक फॉर नेवी है, डबल ए और एसएसआर है, टेक्निकल एंट्री है आपके पास। उसके बाद आपके पास अगर आप ग्रेजुएशन कोई ऐसी टेक्निकल फील्ड चूज कर रहे हो या लॉ फील्ड चूज कर रहे हो, तो आपके पास जैग एंट्री है, टेक्निकल एंट्रीज हैं बहुत सारी, सीडीएस है, कैट है। उसके बाद आपके पास टेरिटोरियल आर्मी, तो आपके पास 42 ईयर्स तक कहीं जा ही नहीं रहा है। आपके पास इतने सारे डोरवेज हैं। डोरवेज तभी काम करेंगे जब आप डेडिकेटेड होंगे अपने प्लान की तरफ और शैटर्ड ना हो। एक बार टूटोगे, 2 बार टूटोगे, 3 बार टूटोगे, उसके बाद आप जान जाओगे कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप काम करना शुरू कर दोगे और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो मैम That's true. आई जस्ट That's टू true. नो कि हाउ यू डील विद द रिजेक्शंस एंड फेलियर्स फ्रॉम द लास्ट एसएसबी टू टिल डेट। आपने कैसे कोप अप करा? I believe that Abhiman, जैसा कि you rightly said that you have to first accept it and then you have to show commitment of improvement, right? Until unless you are not committed towards the improvement, no one can help you. Like someone wants to run, then only someone will teach how to run. If someone is not even interested in running, then how could you teach that person running? So this is the crux of everything, that you have to be committed to your goal. And when it comes to failure or rejection, see, many people will say that motivation is the key, failures are stepping stone to success. They are right, they are completely right. But more than that, what is important is that even after failures, you should be determined enough to raise again, right? People would come to you, they will console you, they would say that, look at so and so example. But even if that is not encouraging you, then keep one thing in mind, that you have to raise again. People will try once, twice, thrice, they won't give you any attention. So in order to keep going, you have to, give strength, and you have to raise above your horizons. So this is what I keep telling people. Failure and rejection are part of everybody's life. चाहे तुम्हारी लाइफ हो, चाहे मेरी लाइफ हो, तो फेलियर्स और रिजेक्शन तो सभी की जिंदगी में है। तो क्या सभी बैठ जाए, सभी दुख मनाए? ऐसा नहीं हो सकता. So I believe that it is you only who will raise above everything. I just want to add that failure are not to break you, they are for making you. आपको बनाने के लिए है, आपको तोड़ने के लिए फेलियर्स नहीं होते हैं। So I just want to Absolutely, add this line absolutely. to. So Yes, that's true, very true. that's truth. And ma'am, how you manage your studies and मतलब एक additional question मैं पूछना चाहता हूँ from my side. Please. How you manage your studies as well as your YouTube channel as well as your Instagram page and उसके बाद आपके पास कलीग्स के लिए भी टाइम निकालना, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना एंड सोशल भी होना, आपके मोहल्ले वालों से भी, रिश्तेदारों से भी बात करना। हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स? मतलब मैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इन सब चीजों में, इन सब चीजों को मैनेज करते करते। तो हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स? I have a very simple rule. When I do one thing, I'm into that thing only. I don't do anything else. Like multitasking का जो concept है, multitasking कभी ये नहीं कहती है कि आप उसी टाइम पे सारे काम करो. मल्टीटास्किंग ये भी कह सकती है कि आप 24 घंटे ऐसे डिवाइड करो कि आप कई सारे काम कर सको. So when I'm in my office, when I'm during my office hours, I never do anything related to YouTube. Never.
So that the same thing that I would suggest, that 24 hours you have, right? So 24 hours, you take out 7 to 8 hours for your rest. Now the remaining hours, you have to make a timetable. Like when I am doing my YouTube, I won't do anything related to my studies. But when I'll do my studies, I won't take my phone even once for YouTube. Like अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, maybe this would go for another 15 or 20 minutes. But after 15 or 20 minutes, if you will ping me on Insta, then I won't be available to answer you back. Yes, Right? ma'am. So इतना clear होना चाहिए आपको. और अभिमान, what I say is, like, you know, when you will start adopting these things from very early, you know, when starting from school days only, so from there only you will adopt a lifestyle wherein you can do a lot of things together. Someone is saying that multitasking means multiple tasks simultaneously. I agree. But what if you can actually take a good version of multitasking and do something, you know, which will actually help you? आप पढ़ने बैठ रहे हो, पढ़ भी रहे हो, फोन भी चला रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे हो, इंस्टा भी कर रहे हो. मल्टीटास्किंग तो वो भी है, but productivity is zero. You know? So this is how you have to manage. Whatever you are doing, at that time, just do that thing only. If you are studying, please study. Do not go to Insta or YouTube. और तुमने कहा सोशलाइज कैसे हो? यूट्यूब और इंस्टा से ज्यादा और कैसे सोशलाइज हो पाओगे? मतलब वो तो ऑलरेडी इतना सोशलाइज कर दे रहे हैं. Maybe you are asking that you want to spend more time with family, then yes, when you are talking to your parents, keep the phone aside. There would be a time when you will have everything but you won't have your parents around, right? So give time to them. Give at least whatever you have, please give time to them. Yes, ma'am. So, next question is about what techniques you adopt for the GTO task. मतलब इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मेरे को जो लगता है जीटीओ में, कि सारे वैल्यूज भी दिखाने हैं, जीटीओ के नजरों में भी आना है, टीम वर्क भी करना है और अपना बेस्ट भी देना है मेरे को. सब चीजें एक साथ करनी. तो बहुत बार होता है कि चीजें मेस्ड अप हो जाती है और कोई अच्छे से वो जीटीओ टास्क कर ही नहीं पाता है, एंड दैट लीड्स टू योर रिजेक्शन. सो व्हाट शुड वी डू? See, Abhiman, you answer me one question. वो जो इतने सारे मटेरियल्स आपको मिलते हैं, बल्लीफ और वो फटका और उसके बाद वो रस्सी और फिर लोड, तो वो सिर्फ ऐसे ही तो नहीं मिलते ना, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ लॉजिक होगा. क्या है वो? एनी आंसर? Just want to know, they just want to know your mental ability, how you deal in this situation, as well as how you manage your teamwork. साथ ही साथ आप टीम वर्क के साथ आप अपना जीटीओ टास्क कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, इसका लॉजिक तो मेरे को तो यही लगता है. बिल्कुल सही लगता है. तो वो जैसे जब आपका जीटीओ भी आपको चीजें देगा ना, तो फिर वो बोलेगा कि दीज आर द हेल्पिंग मटेरियल्स, राइट? तो हेल्पिंग मटेरियल्स का ये मतलब है कि आपको उन चीजों की हेल्प लेनी है. और उन चीजों की हेल्प आप कैसे लोगे? कीप टाइम, यू नो, जैसे मुझे जहां तक समझ में आता है कि एवरीथिंग इज एक्चुअली ब्रिजिंग stability and then using it to overcome the distance. मैम नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो गया था. आई जस्ट वांट टू, it's fine, it's completely fine, I can understand. कि मैम जो आपने बताया दीज आर द हेल्पिंग मटेरियल्स, उसके बाद से प्लीज आप कंटिन्यू वापस. So helping material means that if you want to bridge the distance, then you have to use them effectively, right? So Yes. keep using them. लोग कहते हैं कि आइडियाज खत्म हो गए. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइडियाज खत्म हो जाए. आपको लग रहा है कि ये जो फटका है वो नहीं सही है, बल्ली लगाओ. बल्ली नहीं सही लग रहा है, फटका लगाओ. अगर स्टेबल नहीं है तो उसको रस्सी से बांधो. वहां रस्सी बांधने से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, खोलो कहीं और बांधो. बट कीप डूइंग. होता क्या है ना कि जब आपके पास आइडिया नहीं आता तो आप खड़े हो जाओ. देन यू आर लाइक क्या करूं क्या करूं क्या करूं. सो व्हेन यू पुट प्रेशर ऑन योर माइंड स्टॉप थिंकिंग, एंड इट इज हियर व्हेन द ग्लिच हैपेंस. लगाते रहो, हटाते रहो. मैं ये कमांड टास्क की बात कर रही हूँ क्योंकि सोल डिसीजन आपको लेना होता है.
जब आप जीटीओ टास्क जब आप ग्रुप में कर रहे होते हो, उसका सिंपल एक ही तरीका है, दैट प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन. ओके, कीप थिंकिंग कि मैं इसको इमेजिन करो कि अगर मैं ये चीज यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इतनी डिस्टेंस से ये ब्रिज हो जाएगी. अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम वहां से बल्ली लगा सकते हैं, तो बाकी का डिस्टेंस जो है वो ब्रिज हो जाएगा. और देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ से समझाना चाहती हूँ. अगर ये आपका बेस है और यहाँ पे आपने अपना मटेरियल रखा, तो इधर वेट रखने पे ये ऐसे जाएगा, राइट? तो आपको कुछ भी कोशिश करके इसको यहाँ से रोकना है. और इसको आप कैसे रोक सकते हो? जो ऑलरेडी स्टैब्लिश स्ट्रक्चर्स है उनके नीचे कहीं डाल के. तो जब यहाँ पे ये चीज ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो कोई यहाँ पे खड़ा भी होगा तो ये डाउन नहीं जाएगा. अगर इतना बेसिक कंसेप्ट भी आप लगा दोगे तो मोर देन 90% जो आपका जीटीओ का टास्क है दैट विल बी इजिली डन. और कमांड टास्क में भी जो है वो आप कर ही लोगे. कमांड टास्क में क्या है? कमांड टास्क में बस डिसीजन मेकिंग आपकी हो जाएगी और आपको 2 सबऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे. So it is not difficult at all. Keep using your brain, keep using those helping materials, and you will obviously, I am 100% sure that you will go through all the tasks without any difficulty. I will take 30-second leave from you. I just want to turn on my light. Yeah, please, Just please, 30 please go ahead. seconds. So now okay. So Yeah, yeah. command task में आपको थोड़ा brain as well as your strategy as well as your teamwork, ये तीनों को कॉम्बिनेशन को ब्लेंड करना है, तब जाके आपका बेस्ट निकलेगा उससे. Absolutely, absolutely. अब मैम, अब एक एडिशनल क्वेश्चन मैं और पूछूंगा इस क्वेश्चन के बाद, दैट इज रिलेटेड टू इंटरव्यू. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज lecturate. मतलब how to deal with that. Many of them having fear with lecturate. They don't know how to speak in front of all of them, how to convey your message and your thought and your things, and how to connect with them. Here they lacks. बहुत सारे बंदे होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल से आते हैं. तो हिंदी मीडियम वाले भी कुछ अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, कुछ स्पोकन इंग्लिश किसी की अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है, भले वो कॉन्वेंट स्कूल का हो. क्योंकि हम लोग जितना भी वर्बल कन्वर्सेशन करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हिंदी में करते हैं. तो हम लोग इंग्लिश बोलने का टाइम कब होता है? चैटिंग के थ्रू. वहां पे भी हम लोग हिंदी में बोल देते हैं स्लैंग वर्ड यूज करने के लिए. अब हाउ टू डील विद इट? Okay. So, Abhiman, you have asked me a lot of things in one question. I'll try to answer everything one by one. First thing, you are your best audience. This is the most important thing which a lot of people don't know, but you are your best audience. और आप अपने ऑडियंस कब बनते हो? When you go for mirror session practice. Take any random topic. I'm saying any random topic. So, तो कोई भी अगर आपने टॉपिक लिया है, go in front of mirror and speak to yourself. When you speak, when you see that where my hand gestures are going, how am I standing, how my expressions are going with my words, what is my voice modularity, how audible am I. So ये सारे के सारे जो questions है ना, उसका आंसर आपको मिल जाता है by one mirror session practice. Number one. The second most important thing which you asked is about spoken English. So Abhiman, कोई भी चीज ना रातों रात नहीं आ जाती है, ओवरनाइट कोई भी चीज नहीं होती है. आपको मतलब एक परसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है. हाँ, हो सकता है पहले दिन आप चीज गलत बोलो, हो सकता है दूसरे दिन आप फंबल करो, बट तीसरे दिन से आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे. और दिमाग में एक चीज प्लीज रखिए, जो इंसान अपनी बेइज्जती कराने के लिए रेडी होता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है. ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि yes, I agree on many people they think that what if people will laugh, what if I'll say the wrong word, what if my pronunciation is not good. जो लोग वहां तक भी नहीं पहुंचे, जो लोग हिम्मत ही नहीं दिखा रहे हैं, उनके ओपिनियन से तुम परेशान हो रहे हो. You are at least trying, you are at least giving your best, so leave people's opinion, right? So people ka all those people who will point finger on you,
they have 3 fingers back on them. इतने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, इतने सालों से, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और उसको अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं. सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स. मैं तो कहती हूँ कि जब आप लेक्चरेट हो ना, तो सिंपल सी चीज है, आप सोचो कि ऑडियंस में कोई है ही नहीं, ऑडियंस में कोई नहीं है, या जो लोग हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है. So when you will think like that, then only you will give your best, and do not get scared about feeling humiliated. Humiliation is here. अगर आप सोचोगे Yes, कि ma'am. I'm getting humiliated, get humiliated. As simple as this. So please practice. Try to watch English movies, because in English movies you will get many things at a time. Pronunciation, use of words, and as far as you will understand it, how will I say this, sometimes people say that can I come, and sometimes people are like can I come. तो कॉन्फिडेंस भी अलग हो जाता है. कहीं पे ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और कहीं पे लगता है कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो. तो स्टेटमेंट मॉड्यूलेशन भी आपको आएगा. सो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज गो फॉर प्रैक्टिस एंड डू नॉट गेट स्केयर्ड. So these are the ends of the questions, but I want to add two additional questions. अभी तक ये एक था मेरा, दो था, एक just random mind thought है. अब जब हम लोग आज बैठते हैं तो बहुत सारे होते हैं कि पोजीशन क्या होनी चाहिए. So what I suggest कि your hands on the knees and your back is straight in front of them, and your voice modularity should be that much audible that जिससे कि उनको ये ना लगे कि बहुत ज्यादा एरोगेंट है या बहुत लो है ये. तो मैम जो आई होते हैं वो बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपको इतना फ्रेंडली आपको साथ बना देते हैं, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको सारी चीजें बाहर निकाल लेते हैं. तो आई जस्ट वांट टू नो कि मैम हम कितनी चीजें उन लोग को बताएं, क्योंकि हम ही लोग एक वे हैं उनके पास जिसके थ्रू हम लोग अपनी चीजें बताएंगे. तो हम लोग कितना बताएं और कैसे, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि कितना बताएं और कैसे बताएं. यहाँ पे मैं लैग करता हूँ, और जो मेरी वीकनेस है आयो राउंड में वो ये है कि मैं ओवर फ्रेंडली नेचर हो जाता हूँ कि आई विल टेल माई थिंग्स की व्हाट हैपेंड इन माय पास्ट, व्हाट ब्रेक मी, व्हाट. तो ऐसे मैं क्या क्या बताऊं जिससे कि सही भी रहे और पॉजिटिव अप्रोच रहे, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके. Okay. So अभिमान, बेसिकली आई हैव परसीव कि तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि आपको अपनी कितनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है. दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? कितनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है आयो को. ओके. सो अभिमान, एक चीज हमेशा याद रखो, एसएसबी में जो तुम बताते हो उसी से नए सवाल बनते हैं. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि जितना तुम इंफॉर्मेशन दोगे उसी से नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे. तो उतना ही बताओ जिसके बाद के सवाल तुम्हें आते हो. मतलब सिंपली ऐसा कर सकते हो कि जब तुम अपना यू प्रिपेयर एनीथिंग अबाउट यू, तो उससे तुम याद रखो कि इससे और क्या सवाल बनेगा, राइट? और 3 स्टेज तक उसको ले जाओ, 3 स्टेज के क्वेश्चंस यहीं पे आंसर कर लो, और उतनी ही इंफॉर्मेशन उनको बताओ, राइट? तो होता क्या है कि जब तुम खुद से प्रैक्टिस करके अपना इंटरव्यू जाओगे ना, तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं होगा जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता होगा. जैसे तुमने कहा कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो वो बोलेंगे कि मेडिटेशन में कौन सी मेडिटेशन? तो योगा करता हूँ. तो योगा किससे सीखा? यूट्यूब से सीखा. यूट्यूब पे किसको किसको, मतलब तीन स्टेजेस तक के सवाल प्रिपेयर कर लो, उसका आंसर प्रिपेयर कर लो, एंड आई बिलीव दैट दैट मच इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ. ओके मैम. अब मेरे जो सेकंड क्वेश्चन है भी वो ऐसा है कि मतलब बहुत छोटे से वर्ड में और छोटे से ब्रीफ में आप बताइए फ्रॉम स्टार्ट. मतलब आप कंडक्ट करते थे लाइव सेशन, मैं देखता था आपका लाइव सेशन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में. फ्रॉम देयर टू दिस, व्हाट थिंग्स यू हैड लर्न न्यू, व्हाट न्यू थिंग्स हैड यू लर्न. इतने सारे आपने इंटरव्यू करे हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ. एक का तो मेरे को नाम भी याद है, शायद ओशो मैम है या ओशीन मैम है शायद. ओशीन मैम. I'm sorry, my mistake. Osheen ma'am, she is a recommended candidate for OTA, I think. She is in academy now. So, what the new things had you learned from the past, and what things had made you now? Abhiman, the first thing is that I have learned a lot of teamwork.
when I come into session like this in community, so I have learned how to deal with a lot of different people. Like I can talk to students as well, I can talk to mentors as well, I can talk to people from diverse field. So I guess team spirit, team being team player, and the communication skills which I have got in talking to different people from different age group, from different background. So that has made my mind a lot bigger in horizon. Now I can address with I can connect with people very better. Earlier I was a bit skeptical that should I talk to this person or what should I talk about, but now I'm very clear. You bring any stranger in front of me, I can talk to that person as well. So this people to people connect is something I have learned a lot during the sessions, during the interviews, and during the time when I'm running my channel. So I believe that this connect has actually improved a lot. Specifically, yes. So I just want to add one thing. मैम पहले तो दीदी, मैं तो आपको दी बोलता हूँ. We are having a bond of a brother and sister, according Yes. to me, and I will definitely next time जब भी आऊँगा तो वर्दी में आऊँगा राखी बनाने आपसे. This is my promise to you. Very good, very good. I wish the same. एंड आपकी जो वॉच है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है. मैं पता है डे फर्स्ट से जब मैंने यूट्यूब चैनल पे आपके कमेंट किया था कि आई एम हैविंग अ पेज, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइस टू रीच मोर पीपल. सो फ्रॉम दैट डे मैं आपकी वॉच नोटिस करता हूँ. इज दैट समथिंग जस्ट दैट मेक यू रिमाइंड दैट टाइम इज द की फॉर एवरीथिंग? That's true. That's true. Abhiman, your voice is gone again. Now I'm audible or not, ma'am? Yes. So Abhiman, thank you so much for first. And when you will come for the Rakhi, then this is the watch that I'll give to you. मैम इट विल थैंक्स. अगर आप मेरे को गिफ्ट करोगे ना, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती मेरे लिए, क्योंकि No, but then you have to come in uniform. You have to come in uniform then. विद इन 1 year I will come in a uniform. Absolutely. I really wish you luck, not only to you, but to everyone who is watching this session. All the best to everyone. थैंक यू मैम. एंड जल्दी से आपको मैं देखना चाहता हूँ आपके शॉर्ट हेयर्स में, आपके वर्दी में. एंड पीओपी Yes. में आपको बुलाना जरूर है. मैं थोड़ा सा इस मामले में बड़ा बेशरम हूँ कि आपको पीओपी में हमें जरूर बुलाना है. बॉल पार्टी में बुलाओ ना बुलाओ आप भी, पर पीओपी में जरूर बुलाना है मेरे को. तो इस मामले में बड़ा बेशरम हूँ मैं. तो आई विल रिक्वेस्ट I यू wish टू you get इनवाइट मी your ऑन. I wish you get your own ball and you get your own parties, you get your own POPs and everything that you are wishing. May God bless you all and all the best to everyone. Thank you, ma'am. Thank you for giving your time and giving for your strategy and things that I'm sharing with us. And Pleasure is wishing all you mine, Viman. and Pleasure wishing is you all. a best of luck in your journey. And I Oh, just want to give a salute to you because how you manage the oh, things very well it's is completely exceptional. your effort. Yes, how you manage the things is completely exceptional. And thank you. And I just want to take a leave from you. I will conduct a 20-minute Okay, more session with these guys. And thank you, ma'am. And Jai okay. Hind. Namaste. Bye bye. And I will definitely give next time. हाँ, जब मिड टर्म ब्रेक होगा एक सेशन और करा जाएगा अगर मैं अवेलेबल रहा तो. Absolutely. थैंक I यू wish जी. तुम available ना रहो, तुम अपने सेशन में. ओके जी. आई होप ऐसा ही Okay. हो. आई होप ऐसा ही. Yes, it थैंक will be. थैंक यू. Hope for the best. Best will happen to you. थैंक यू. थैंक यू. Bye. So this was the Sagrika Singh. How she managed the things very well is quite exceptional. ऐसी बंदियां और ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं मेरे को जो ऐसे चीज मैनेज कर पाए. एंड
some questions were there from Tan Freak Sunshine. So I just want to tell you all, she's my partner, she's my girlfriend, and she's my future proud wife. I just want to. And any question from you guys? हाँ, मेरे को एक मैसेज जरूर देना है तुम लोगों को कि यार चीजें होती है यार, ब्रेक होते हो आप, टूटते हो, फेलियर होता है, उससे आप एंजाइटी ना करो, ओवर थिंकिंग ना करो, डिप्रेशन में ना जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे टेलीग्राम चैनल में। I'm having this problem, I'm having this problem. Tantric Sunshine, just stay here. And who is annoying you? What's his name? I will, Tantric, I will let you know about this, ठीक है? And हाँ, तो कैसे चीज़ों को मैनेज करना है ये आप पे होता है, कैसे चीज़ों को अच्छे वे से मैनेज करना है वो आपको पे डिपेंड करता है। एंड CDS के लिए भी 40 डेज बाकी हैं, तो मेरा तो स्ट्रेटेजी यही होता है, क्रैश कोर्स देखो, देन MCQ करो एंड मॉक टेस्ट सीरीज करो पूरा, ठीक है? इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको फ्यूचर में। So this is the end of this live video, and I hope you get the information and you got the productive, you got something good and something positive and something that will help you in your examination and in your strategy. So I will take your leave. Jai Hind, and stay blessed, stay happy, stay safe.